So hey guys, welcome back today. Today we are going to talk about higher education and how can we do higher education in abroad, and especially Shivani madam, professor, and she studied her masters in German. So we are going to know about her journey, and let's we start. Ma'am, why did you choose especially journey for your higher education? Like journey for higher education, like Yes, that. ma'am. Okay, I actually was working after completion of my masters. I worked for 3 years in one IT company in Pune. So after I was in my third year, so that time I realized ki like it is going like a continuous thing. Okay, I am not progressing well. So now it is a better time. I should pursue the masters, because if I didn't do that time, then there will be not a chance. Plus, personally, being a girl that time, my parents were behind me for getting married. So I didn't want to get married like that particular time. So this was the only option for me. Even if I was in India, they would have gotten me married like that. So I wanted to go, like I wanted to pursue masters outside India itself. Now, like Germany selection was a different kind of story, but this was the main reason why I thought ki, okay, I will complete master's degree first, because once you complete your education, right, then in your life everything is okay, like settled. Once your education is completed, then you can choose your own path. If you want to divert, few people, what they will do engineering in bachelor's in engineering, and they will pursue MBA. That is also not a wrong thing. Okay, it is a good thing, because that time you are understanding what exactly you want to shape your career. So you can take a time of 2-3 years, you can take some leap in between. ओके मैम, Yeah. ऐसा बोले तो स्पेशली जर्मन जॉब के लिए गए थे मैम। जर्मनी, हाँ. हाँ, Yeah. और वहाँ जॉब पर के लिए नहीं, आई वेंट देयर फॉर लाइक स्टडिंग ओनली. आई डिड नॉट गॉट जॉब बिफोर. आई अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी डायरेक्टली फॉर मास्टर्स. मतलब मैम वहाँ पे जाके फर्स्ट हाउ वाज योर फीलिंग? ओह, ओके. Actually, जब like when I got the application, it was in 2019 November. I started applying from June itself, 2019, but I got my first application in November. I remember because that was my birthday week. So that is why I remember very clearly. So I got that application, and उसके बाद में it happened like, then I thought कि okay, it was a summer intake. Basically Germany में there are two intakes, summer and winter. Okay, तो मेरा summer intake में हुआ. Then after that I thought कि okay, it was starting from March. I literally had only a few months in my hand. उसी टाइम पे कोविड आ गया. Same time, like March, around March end, COVID came. So our flights got delayed. Everything went off the track. Our visa got expired. So it was a very tough journey, I would say, initially. Because we were all prepared actually. Like okay, like my bags were packed. Okay, my visa, my passport, my all stuff was almost ready. But then suddenly the flights were cancelled. Then initially that time we got visa for only 3 months. Okay. Then you have to go to Germany, then you have to renew it for 2 years, like Yes, that. ma'am. So that 3 months duration also got over in June. By June also the flights did not start. So it was very, that time it was not a good feeling actually. हमको ऐसा लग रहा था कि whether we will be able to go or not. Then again the government decided okay, we will start the flights. Then again visa process started. So when we landed in Germany, so आफ्टर कोरोना? after corona, not after corona, during corona itself. Okay. Because September I landed in Germany. So it was a corona time itself, but full in the like वो था ना, full mask and all, full quarantine zone. Yes, ma'am. Full testing and everything was happening that time. If you are negative, then only they were allowing you to board the flight. Full that time. So when I landed in Germany, that time I was only in that zone कि okay, like now what, like that. So we really did not think, oh my god, we are leaving our family behind, because so many things were going around. Okay. कोरोना की वजह से like everything was disturbed, and we were only like कि before expiring of this visa we have to go to Germany, Yes, ma'am. settle होना है.
That was our main motive. हाँ, after that, like around November, December, जब थोड़ा like few months passed, then we thought कि oh my god, we left our family in separate continent, not even a country. It was a separate continent all of a sudden. Then after 2-3 months, it got us hit. कि oh my god, like okay, no one is here. Then suddenly, like slowly we started making friends. So with friends, you need them for your journey. नहीं तो German friends, huh? yeah, like mixed. Main to मेरे best friends were Indians only Okay. that time. But one was from Kerala and another one was from, like she was in Hyderabad before. That time I was not in Hyderabad. Uh-huh. But she was basically from like UP. Okay. UP, Jharkhand, yeah, that side. So, but they were my best friend. We made obviously like different people also were like few Germans were our friends. We were having a project group basically. Okay. So eventually you will make friends there. But you need 2-3 very good friends. Like when you are not in a good state of mind, you should go to them, because there you just call your parents over the phone. They cannot help you. You need someone in person. So it's very important you make very good friends, at least 1 or 2, not more than that. But you need good friends there. एंड मैम मैं ऐसा सुना कि वहाँ पे जाके रेसिडेंशियल के लिए बहुत तकलीफ होता है बोल के सुना था। नॉट नेसेसरी, लाइक नॉट एग्जैक्टली आई वुड से, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से गए थे फर्स्ट व्हेन आई वेंट, ऑलरेडी आई हैड लाइक फ्लैट इन माय हैंड ओके। रेंटेड. वहाँ पे डॉर्म्स रहते हैं विच कॉलेज यूनिवर्सिटी विल गिव यू. तो इनिशियली इफ यू वांट, इट्स अप टू यू, आपको उधर मिल जाएगा फ्लैट्स. हाँ, it might be the case कि few of the flat people ना, like the owners, they will prefer Germans only. Yes, ma'am. But it depends again upon the city, upon the town. Okay. Basically, where I studied, Kaiserslautern was a town name. So it was a small town, not a big. In that, the very attractive place was our university itself. Okay, so there German was very important. But if you go to Frankfurt, Berlin, like those cities, there they will not do this kind of discrimination. That is one thing. So you will get easily flat वगैरह. I would suggest if someone is going for the first time, go and look for a dorm. जो university provide. It is a flat only, but it's near to the university. The rent is less. And transport. Transportation is very nice in oh my god, the complete Europe. Okay. It is the main highlight of the Europe. That their transportation. Okay. You cannot we used to travel in the night 11:30, 12 without fearing anything in the transport, like buses, trams, trains, everything will be continuously available there. And safety, very good, like they will have safety on top notch. Like मैम वहाँ पे ना ट्रांसपोर्टेशन फॉर स्टूडेंट्स डिस्काउंट मिलता है। हाँ, like if you are having that university card, it is free. फ्री रहता है, या टोटल फ्री इन योर स्टेट. ओके. इन योर स्टेट. अगर तुमको लाइक इफ यू आर गोइंग आउटसाइड योर स्टेट, देन देयर इज सम डिस्काउंट फॉर श्योर. बट तुम्हारे स्टेट में, बट नॉट ऑल द, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑल द आरटीसी बसेस विल बी फ्री, ऑल द लोकल ट्रांसपोर्ट्स विल बी फ्री. अब जैसे कि जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हो जाती है, दीज ट्रेन्स विल नॉट बी फ्री. वहां पे उसको आईसीई बोलते हैं. आईसीई ट्रेन्स आर देयर, दैट इज नॉट फ्री. फॉर दैट यू हैव टू पे. बट द रीजनल ट्रेन्स, you know, the normal like S-Bahn, R-Bahn, they say it like that. S-Bahn will be there, then RE-Bahn will be there, and apart from that local buses, trams, these all will be free of cost. And मैम मैं ऐसा भी एक सुना था कि वहाँ पे रेसिज्म लाइक मैं रेसिज्म नहीं बोलूंगी, लिटिल बिट इट्स लाइक थोड़ा गुंडा वाला एरिया रहता है कहीं कहीं पे. इन माई टाउन आई नेवर फाउंड दैट. मैंने सुना है बर्लिन में रहता है. And not Germans. Germans लोग नहीं करेंगे कभी भी. Some other country के people will come and they will form their own tribe and they will just do the दादागिरी kind of thing. They will just force, just वो होता है ना pocket lifting and all that thing in the night itself. Morning वगैरह में till evening वगैरह nothing is there. Night में ही होता है. But Germans will never do that. Okay. And not in this kind of towns, like very, और वो भी there are some specific areas. You will understand eventually कि this area I should not go like that. Racism I would not say. It depends upon like a few people. जैसे कि मैंने बोला कि flat, if you are hunting for a flat or a room, sometimes owner would suggest, like owner would prefer German residents itself.
Okay, but I would not say, see, Hyderabad maybe when I was looking for a flat initially, they were looking for Telugu people. I would not say that is racism. Okay, that is their own mindset. Okay, ऐसा नहीं रहता है हर जगह पे wherever you go, people will try to find first कि हमारा कौन मिलता. That because they are also in the comfort zone, they can communicate properly. So according to me, that is not a racism. But if you go in Maharashtra, तो अगर ऐसा रहेगा कुछ कुछ फैमिलीज नॉट एवरीवन कुछ कुछ लोग ऐसा प्रेफर करेंगे कि अगर महाराष्ट्रियन लोग मिल रहे हैं तो बेटर. यहाँ पे जैसे कि आई टोल्ड यू 2-3 टाइम्स इट हैपेंड विथ मी. द हाउस वाज वेरी गुड बट जस्ट बिकॉज वी वर नॉट तेलुगु पीपल तो दे डिड नॉट गिव अस द फ्लैट. मतलब वहाँ पे ऐसा है कि लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. चलो नहीं, मैं देखो ऐसा बोलूंगी कि जैसे बर्लिन फ्रैंकफर्ट इधर हो गए बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पे दे विल नॉट इवन बॉदर आस्किंग यू लाइक नॉर्मल पीपल विल आल्सो टॉक इन इंग्लिश ओनली देयर. हाँ, अगर तुम नॉर्मल टाउन्स में जा रहे हो लोकल एरियाज देयर पीपल विल नो ओनली जर्मन. वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो आई वुड सजेस्ट कि दोज हु आर गोइंग एटलीस्ट लर्न A1 A2 बेसिक्स. आई ओनली लर्नड A1 लाइक इधर इंडिया का A2. इट इज इंडिया का A2 देयर A1. Okay, if you are learning German in India, if you are scoring A2 certificate in India, it's equivalent to their A1. ओके मैडम, मतलब जर्मन जाने के पहले लैंग्वेज सीखना पड़ता है? मैंने नहीं सीखा था क्योंकि आई स्टार्टेड एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई स्टार्टेड द कोर्स इन पुणे इटसेल्फ बट ड्यू टू दिस कोविड एंड ऑल सिचुएशन आई कुड नॉट फिनिश इट. तो डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी. जब तुम अप्लाई कर रहे हो ना दैट टाइम दे विल इन देयर प्री रिक्विजिट्स दे विल मेंशन कि वेदर यू नीड टू कंप्लीट अ कोर्स और यू कम हियर देन यू कंप्लीट अ कोर्स. हमारे इसमें वैसा था. विद इन दे गेव अस 1 year का टाइम. इन 1 year दैट मीन्स 2 semesters. इन 2 semesters you have to complete A1. हाँ, so A1 is okay, like they will give you credits also for that. मैम why did they, मतलब इंडिया में ऐसा नहीं होता कि हिंदी पढ़ने हिंदी लेकिन यहाँ पे इंग्लिश तो जरूरी है ना. लेकिन वहाँ पे इंग्लिश को क्यों? बिकॉज वहाँ पे कम्युनिकेशन इशू होता है. फॉर एग्जाम्पल इन हैदराबाद यू कंसिडर हैदराबाद ओके. तुम अगर लोकल एरियाज में जाओगे ओके लोकल एरियाज में इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी विल दे अंडरस्टैंड? दे नीड तेलुगु क्योंकि एवरी पर्सन इज नॉट एबल टू लर्न. एवरी पर्सन हु इज वर्किंग देयर जो लोकल टाउन्स चला रहे हैं जो लोकल शॉप्स चला रहे हैं यू डोंट नो देयर एजुकेशन. They are born and brought up learning German only. So you cannot expect them to learn English. Okay. You are going into another country, you need to adapt according to them. Okay, if some people are coming in India, you will see like some bloggers or someone, they will start speaking Hindi. Or if they are coming in Hyderabad, they will start to learn some words in Telugu. Because wherever you are going, you need to adjust and adapt according to their situation. Okay, you are for example you want to shop something from a grocery market. ठीक है, वहां पे जाके तुम बोल रहे हो कि I cannot speak German. वहां पे you want your grocery. Yes, ma'am. वो लोग क्या बोलेंगे? Don't buy, you can go. Okay. किसकी जरूरत है? हमारी जरूरत है. We are not telling them कि तुम इंग्लिश लर्न करो क्योंकि हम तुम्हारे कस्टमर है. Not that. वो बोलेंगे तुम गए दूसरा आता. Correct. So we cannot tell कि तुम इंग्लिश लर्न करो. तो वी हैव टू ओनली अडेप्ट. और वो लोग ये नहीं बोल रहे कि यू लर्न कंप्लीट जर्मन. वो बोल रहे बेसिक्स सीखो. बेसिक्स इज अ गुड थिंग. यू शुड एक्चुअली हैव वेर एवर यू आर गोइंग. अब जैसे कि यहाँ पे आई लर्न सम तेलुगु. इट वॉज नॉट नीडेड फॉर मी. अगर मैं नहीं चाहती तो मैं तेलुगु नहीं सीखती. बट आई वॉन्टेड टू एडजस्ट, आई वॉन्टेड टू अडेप्ट. ठीक है, तो इट्स योर ओन थिंकिंग. मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बैड थिंग. एंड आई हेयर दैट कि संडे अगर और एक नाइट टाइम पे भी जल्दी से शॉप क्लोज हो जाएगी. हाँ, yes, oh my god, yeah, it was a very change for us also because being like we are living in India. यहाँ पे हमको आदत है till we will roam around 12 o'clock 11 1 2 रात भर घूम रहे. वहाँ पे 8 o'clock the malls will close. Literally they will shut down their shutter. Okay, malls. हाँ, few जो food restaurants and all will be open. रेस्टोरेंट्स, पब्स, देन योर नॉर्मल फूड चेन्स जो रहती है दे विल बी ओपन. लेकिन जो शॉपिंग वाली चीजें रहती है इट विल बी क्लोज्ड. देन उसके बाद में इन विंटर देर इज वन मार्केट. ओके, क्रिसमस दे से क्रिसमस मार्केट. सो दैट टाइम इट विल बी ओपन टिल 12 1 1:30 लाइक दैट.
बिकॉज ऑफ नहीं, वो उनका मेला है, इट्स अ देयर मेला, जैसा हमारे यहाँ पे मेला रहता है, इट्स देयर थिंग। अक्टूबर फेस्ट एक रहता है, इट्स इन बर्लिन, फ्रैंकफर्ट एंड ऑल बिग बिग सिटीज, वो भी सेम उनका मेला। दे विल ऑलवेज डू दिस नियर क्रिसमस, तो उन लोग का ये दैट इज देयर फेस्टिवल, देयर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, तो दैट इज वेरी नाइस देयर। तो दैट टाइम इट विल बी ओपन, बट जो लोकल शॉप्स रहती है इट विल बी क्लोज बाय 8 o'clock। एंड संडे आल्सो संडेज भी बंद रहते हैं, यस पूरा हाँ संडे। तो whenever I remember, like whenever we used to shop for grocery and all, we used to shop on Saturday itself, क्योंकि संडे को कुछ नहीं मिलता था, nothing, Totally rest. full roads and everything will be on like सन्नाटा proper। हाँ, ये टाइम पे मुझे लगता है कि जर्मन्स हाँ इतना रेस्ट ले लेते हैं, हाँ और इंडिया में पूरा कुछ कुछ भी दिन देख लो। हाँ करेक्ट, हाँ, दे विल Working एक्चुअली for- दे विल फोकस ऑन देयर पर्सनल लाइफ एज वेल। वहां पे 9 to 5 का जॉब है, मतलब 5 o'clock देयर सिस्टम्स विल शट डाउन, वॉट एवर इट इज, यूनिवर्सिटी बोलो या लाइक वॉट एवर कॉलेज, IT companies, any research institutes, if their time is 9 to 5, they will not even work for 5:01, 5 o'clock their systems will shut down। वहाँ पे like I worked in one restaurant also, meanwhile part time, multiple jobs we did, so वहाँ पे that was a Mexican restaurant basically, so the timings were 9, like 9 to 9, no 10 to 9, sorry, Okay. morning 10 to 9, dot 10 o'clock they will open the shop, dot 9 o'clock they will They will close close. the restaurant, like literally close, sometimes if they see there are no customers they will close at 8:45 only। एंड वो ना टाइम के हिसाब से काम करते हैं ना। हाँ यस, फुल मतलब, टाइम। कोई स्टूडेंट गए तो इन लोगों को एक 93 आवर्स ऐसा रहता है पर वीक 20 hours you are allowed as a student, 20 hours per week you can do a part time job, not more than that। अगर तुम कर भी रहे हो तो गवर्नमेंट विल नॉट पे यू। ओके, गवर्नमेंट पे नहीं करती और टैक्स भी ज़्यादा लिया जाता है। टैक्स का आई डोंट हैव दैट मच आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो भी तुम्हारा सैलरी रहता है इट विल बी बेस्ड ऑन द 20 hours का शिफ्ट। अगर तुमने 21 hours भी किया तो जो भी तुम्हारा एम्प्लॉयर है दे विल ऑल्सो नॉट पे यू, एंड यू कैनॉट से गवर्नमेंट ऑल्सो कि आई वर्क दिस मच सो पे मी एक्स्ट्रा। मैक्सिमम यू कैन वर्क फॉर 10 hour 11 hours, 1 hour के लिए भी वर्क कर सकते हैं, 20 का 21 नहीं होना। एंड मैडम इतना रेस्ट लिया जाता है और हाँ। सब कुछ करता जाता है, लेकिन वो जर्मनी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, हाँ मतलब इंडिया में 24/7 कभी देखे तो भी रेस्ट रहता है। यार वो मैं बोलूंगी लाइक दैट कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन द पीपल, ठीक है। वहाँ पे तुम एक लिविंग सेंस देख लो, वहाँ पे लाइक इफ यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट यू विल नॉट योरसेल्फ फील कि मैं चॉकलेट का रैपर सड़क पे डालूं। यहाँ पे हम चलते फिरते केले का छिलका नीचे फेंक Yes, रहे ma'am. हैं समथिंग, तो एक सिविक सेंस रहता है। इफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, तुम्हारी कंट्री कभी डेवलप हो ही नहीं सकती, इट विल नेवर बी डेवलप। Exactly. सो पहली चीज है पीपल, ओके, इफ यू आर डेवलपिंग दैट, तो वहां पे जर्मनी में इफ यू टेक योर नॉर्मल फोन ऑल्सो, वहां पे फोटो खींचोगे ना यू विल फील लाइक यू हैव टेकन द पिक्चर विद आईफोन और समथिंग। इतना वहां पे एयर क्वालिटी इतना क्लीन है, लिटरली लाइक व्हेन आई वाज इन जर्मनी, तो वहां से व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक टू इंडिया लाइक फॉर मीटिंग माय पेरेंट्स एंड ऑल, so they used to see my photos in Germany and then I used to come here, so they are like why you are looking so different within one day, ओके, like that। so उधर एयर क्वालिटी बहुत डिफरेंट है, ओके वहां पे सब कुछ HD में चलता है, HD, फुल HD। वहां पे जितनी भी कार्स एंड ऑल है दे विल एमिट लेस पोल्यूशन। यहाँ पे गैस हमारा फॉर एग्जांपल पेट्रोल इज गेटिंग प्राइस गेटिंग हायर, केरोसिन डालेंगे, ओके डीजल समथिंग, द ऑटो रिक्शा पीपल एंड ऑल दे विल पुट एनीथिंग और फुल पोल्यूशन करके निकलते हैं, ओके। तो रोड पे चले तो गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं। एग्जैक्टली तो फिर इतना सब होने के बाद में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इंडिया जल्दी डेवलप कंट्री बन जाए। वहां पे ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर ऑलरेडी रेडी, सब कुछ जो भी है एवरीथिंग इज प्रॉपरली क्लीन्ड, सब कुछ है वहां पे, लाइक वेरी नाइस रोड्स एंड ऑल आर एवरीथिंग वेरी क्लीन। वैसा है तो हॉस्पिटल में काम ज़्यादा नहीं पड़ता होगा शायद। नहीं ऐसा नहीं है, वहां पे एक्चुअली द पीपल ना देर आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, एवरी वीक और एवरी मंथ दे विल गो फॉर अ नॉर्मल रूटीन चेकअप, ओके, रूटीन चेकअप, या ओनली फॉर बस रूटीन मजाक मजाक में चल चेकअप। रहा हाँ है। लाइक इट्स लाइक कि चेक लाइक नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाएंगे फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज और समथिंग। लेकिन वहाँ पे कैसा मैम,
अभी इंडिया में अब मुझे कुछ भी इमरजेंसी हो गई तो जाके डॉक्टर से मिल सकता हूँ, हाँ. लेकिन जर्मन में कैसे होता है? There is one term known as house arts. हाउस आर्ट्स, Arts means doctor there. ओके So every person, whenever they go in Germany, they need to register for an house art. For example, if you are landing in Germany, the very first thing you have to do within a 1 month of span, you have to find one doctor nearby your locality. ओके Whatever happens, you have to go to first there. It is also free for a student. Okay. Normal checkup is free. Medicines का cost लगता. Then if there are some scans or something, then that is also like you have to take the फ्री ऑफ चेकअप, checkup is free. ओके Okay, so you have to go to that doctor only. So every person in Germany will have their own doctor. Whatever happens, you go to them directly, like that. So doctors का is health, they will never compromise. एंड वहाँ पे कल्चर कैसा था मैम? लाइक About what? उनका कल्चर मैम यहाँ पे कैसे रहते हैं? वहाँ पे कल्चर वाइज आई वुड से कि वो लोग सिर्फ एक ही फेस्टिवल मनाते, दैट्स इट, क्रिसमस. और वो क्रिसमस का जो फ्रॉम अक्टूबर टू फेब्रुअरी, वो जो 5 months रहते हैं, दैट विल बी द बेस्ट मंथ्स इन यूरोप. इफ आपको अगर सच में अगर यूरोपियन कल्चर, अगर यूरोप को एक्सप्लोर करना है, you should go during that particular span of time, especially November December. ये 2 टाइम में यू रोम द कंप्लीट यूरोप. बेस्ट रहता, लाइक यू वुड सी दैट कंप्लीट डेकोरेशन. हम लोग दिवाली में भी इतना नहीं सजाते जितना पूरा कंट्री वो लोग सजा देते हैं. फुल दे विल कंप्लीट कंट्री नहीं, एक्चुअली फुल यूरोप ओनली. फुल लाइटिंग्स, रास्ते पे पेड़ पे लाइट्स लगी है. स्ट्रीट लाइट्स आर डिफरेंट दैट टाइम. नॉर्मली बिल्डिंग्स में भी लाइट्स लगी हुई है. लाइक लिटरली इट्स वेरी लाइट अप दैट टाइम. ओके मैम, इंडिया में मैम अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो किसी से भी पूछे तो हेल्प मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे पीपल का बिहेवियर एंड लाइक यहाँ हाँ, ये आई वुड से दिस वेरी गुड, दिस इज अ वेरी एक्चुअली गुड थिंग अबाउट इंडियंस कि हम लोग ना हेल्प करने के पहले सोचते नहीं है. हाँ यस मैम, ओके, वहाँ पे इफ यू वांट टू फाइंड समथिंग यू विल फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट. वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक तुमको कम्युनिकेशन इशू होगा अगर इफ यू आर नॉट दैट गुड स्पीकर इन जर्मन. ओके, तो तुमको थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है कि हाउ यू शुड से. देन यू हैव टू डू लेंस, फिर गूगल ट्रांसलेट, एवरीथिंग वी डिड इनिशियली. व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो टू बाय समथिंग, वहाँ पे सब जर्मन में लिखा रहता था. हमारे मोबाइल में इवन इफ व्हाट्सएप इज नॉट देयर, नॉट एन इशू, लेंस ऐप रहना जरूरी है. बस क्लिक करके ट्रांसलेट करो, व्हाट इज दिस, वेयर आई कैन फाइंड द आटा, वेयर आई कैन फाइंड दिस सॉस, समथिंग लाइक दैट. तो यू हैव टू ट्रांसलेट. Because sometimes one time I remember we just wanted to pick a bottle of water. हमने पिक किया, as soon as we started drinking it, it was sparkling water. वहाँ पे लोग sparkling water पीते हैं, सोडा बेसिकली नॉर्मली. हमारे लिए जैसे हमने एक सिप पिया पानी का, हमने बॉटल ही फेंक दी. और उस पे लिखा वाटर ही रहता है, जस्ट एक छोटा सा वर्ड लिखा रहेगा स्पार्कलिंग इन जर्मन. तो हमने वो देखा ही नहीं, पानी की बोतल देखी, उठा ली. उसके बाद से हमने हर जगह पे लेंस ले लेके घूमे हैं. सब कुछ चेक करो, पहले चेक करो, देन यू बाय. इट्स लाइक दैट. तो इंडिया में इट्स नॉट दैट थिंग. इंडियंस आर वेरी गुड. लाइक आप कोई भी स्टेट में चले जाओ, देयर इफ यू वांट टू फाइंड समथिंग दे विल हेल्प यू. हेल्पिंग नेचर यहाँ पे आई वुड से इंडिया इज बेटर देन जर्मनी इन दैट थिंग. कोई भी आने दो, एनी पर्सन, वी विल हेल्प देम. यस मैम, वो भी सुना था वहाँ पे कि बैंक में और कहाँ भी बैंक इश्यूज. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बैंक गई नहीं कभी. ओनली वन टाइम आई वेंट व्हेन आई 2 times आई वेंट इन माय कंप्लीट जर्नी. फर्स्ट बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए, सेकंड बैंक अकाउंट क्लोज कराने के लिए. दैट्स इट. ओके, बिकॉज वहाँ पे कैसा है कि ATMs आर वेरी गुड. आसपास तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो तुमको कार्ड मिल जाता है. देयर इज बैंक वेब, जो वेब ऐप रहता है वो रहता है. यू विल हैव योर यूजर ID पासवर्ड. तो बैंक पर्सनली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी. तो आई डोंट नो मच अबाउट दैट, लेकिन हाँ, लाइक द सिस्टम इज वेरी गुड. अगर मनी चाहिए तो वहाँ पे जाना पड़ता है बैंक. नहीं, ATMs अवेलेबल बहुत रहते हैं, सब एवरीवेयर ATMs विल बी देयर. यहाँ तो UPI पेमेंट कर दो. यहाँ वहाँ पे एक और चीज है, लाइक देयर UPI स्टिल डिड नॉट कम. एक पेपाल करके है. दैट टाइम लाइक आई केम बैक इन 2023. मुझे नहीं पता लेकिन 3 years एनीथिंग चेंज्ड और नॉट, बट दैट टाइम UPI was not started there.
इट वॉज वेरी या उधर फुल कैश पेमेंट चलता है, कैश कार्ड दैट्स इट. एंड कम टू द एजुकेशन मैम, एजुकेशन प्लान पे बोले तो मतलब वहाँ का एजुकेशन कैसा रहता मैम, स्कूलिंग? स्कूलिंग का आई हैव नो आइडिया. वहाँ पे मतलब क्योंकि बच्चे वगैरह आई नेवर सीन स्कूल्स वगैरह का, आई हैव नो आइडिया. बैचलर्स का व्हाट आई हर्ड वाज बैचलर्स इफ यू वांट टू डू इट विल बी इन जर्मन इटसेल्फ. वहाँ पे बैचलर्स में इंग्लिश के कोर्स बहुत कम है. मास्टर्स एवरीवेयर इट विल बी इंग्लिश. ओके. ऑल ओवर जर्मनी मास्टर्स के कोर्सेस इंग्लिश में ही रहेंगे. बैचलर्स वेरी फ्यू इज इन इंग्लिश. वहाँ पे बैचलर अगर तुमको लाइक यू वांट टू डू बैचलर्स इन एनी ऑफ द कोर्स दैट टाइम यू हैव टू डू इन जर्मन ओनली. एंड मैडम वहाँ पे मतलब बैचलर्स में ड्रॉप आउट करते थे मतलब इंजीनियरिंग बैचलर्स में आई डोंट हैव आइडिया. बैचलर्स का मेरे को इतना आइडिया नहीं है बिकॉज जनरली देयर पीपल मतलब उधर पढ़ लेते हैं लोग, दे विल स्टडी. ड्रॉप आउट का मैंने जनरली सुना है इन मास्टर्स, दे विल नॉट हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर, तो दे जनरली ड्रॉप आउट. मैम दैट वन थिंग चेंज जर्मनी टू बिकम वेरी डेवलप्ड कंट्री, व्हाट डू यू थिंक? ओके, अच्छा डेवलप्ड कंट्री. हाँ. मैं अगेन आई वुड से सिविक सेंस very top thing. Okay. There like you should know like where you are investing like your time. Okay, like तुमको पता है you should have that particular civic sense in yourself कि if you are going out of your house, ठीक है, normally चलते चलते you cannot throw everything here and there. वहाँ पे literally if something is fallen down on the ground and in front of me it's there, तो कोई random people आके they will pick that up and they'll throw it in the dustbin. हमारे इधर नहीं करते, हमारे इधर वो उसको पड़े रहने दो. We will not do, it's not our job, वैसा बोलते हैं. देन वहाँ पे जो कार्स वगैरह है, एनीवेज देख जर्मनी इज द हब ऑफ कार. सारी बड़ी बड़ी ऑल द कार बिग कंपनीज आर देयर ओनली. स्कोडा हो गया, मर्सिडीज, BMW, ऑल दीज थिंग्स आर देयर ओनली. तो उनका जो एमिशन रेट है ना, लाइक वॉट एवर, आई हैव नेवर सीन अ कार देयर जिसमें से धुआं निकल रहा है. I don't know what system they use in their cars. I really don't know. But we have seen multi. ऐसा नहीं है कि बहुत कम कार्स चलती है. वहाँ पे हर नॉर्मल घर वालों के पास में कार रहेगा. Every family will have car there. वहाँ पे ऐसा है. कहीं मैंने देखा नहीं कि इसमें से धुआं निकल रहा है. देखा ही नहीं है. I don't know what they do. Literally like we were in shock like when like we used to see these things. वहाँ पे बसेस भी जो है, बसेस में से भी धुआं नहीं निकलता. वहाँ पे बसेस मर्सिडीज ऑडी की चलती है यार. नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन लाइक वी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट, हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. बसेस आर मर्सिडीज, BMW, ऑडी. वहाँ पे लाइक इफ यू आर गोइंग इन अ टैक्सीज मर्सिडीज ऑडी BMW की रहती है. नॉर्मल लाइक इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन व्हेन यू आर कमिंग आउट, यू वांट टू गो टू योर होम और समथिंग. ये तीन के अलावा मैंने कोई देखी नहीं. एंड मैम वैसे बोले तो जर्मन एक रिचेस्ट कंट्री है मैम. हाँ, वन ऑफ द या. ऐसा देखे तो इंडिया में कोई लोगों ना 2 टाइम ही खाते, एक दिन में 2 टाइम खाते और खाने को भी नहीं मिलता. नहीं, वहाँ पे भी ऐसे है वहाँ पे भी है बट नॉट दैट मच. हम लोग देखते थे लाइक वहाँ पे भी लाइक वी हैव सीन पीपल लाइक जैसे कि जब मैं ऐसे आई यूज्ड टू वर्क इन अ रेस्टोरेंट और समथिंग, या ऐसा कहीं भी हम लोग जा रहे हैं बट वी आर फुल, हमारे पास खाना है, तो स्टेशन के बाहर 3-4 लोग ऐसे बैठे रहते थे. तो वी यूज्ड टू गिव इट टू देम. आई न्यू कि मैं घर जाके नहीं खाऊंगी तो व्हाई टू वेस्ट. तो फिर हम लोग उनको दे देते थे कि हाँ खा लो. लेकिन है उधर भी वैसे लोग हैं. इट्स जस्ट लाइक कि हमको दिखता नहीं है. यहाँ पे कैसे हम लोग वी विल इट्स वेरी विजिबल टू अवर आईज. वहाँ पे ऐसा है कि इतना ज्यादा सब लोगों ने प्रॉपरली दे हैव सेटल्ड एवरीथिंग कि ये सब चीजें दिखती नहीं है. बट देयर आर ऑल्सो दीज काइंड ऑफ पीपल लाइक पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम द लिटर, लाइक डस्टबिन में से चीजें उठाना एंड ऑल, उधर भी है. एंड ज्यादा पुअर पीपल भी ज्यादा पुअर में आई डिड नॉट नो, आई डोंट नो एक्चुअली बिकॉज सबके पास घर है वहाँ पे. बट ये जो लोग है जो दैट आई हैव नो आइडिया गवर्नमेंट का मतलब. लेकिन जॉब हर किसी के पास रहता है वहाँ पे. दे विल वर्क. गवर्नमेंट ये है उधर की लाइक दे विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देयर पीपल. इन जर्मन इजी टू फाइंड जॉब्स? नहीं, आई वुड नॉट से इजी. डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को वहाँ पे लाइक टू गेट अ जॉब आफ्टर द मास्टर्स दे ऑल्सो टुक टाइम. ईजी नहीं रहता वहाँ पे. हाँ, वॉट एवर टेक्निक हियर ऑल्सो इन इंडिया नाउ रिसेशन इज गोइंग ऑन. IT में जल्दी जॉब्स नहीं मिल रहे इजीली.
So equal difficulty level बोलूँगी मैं, the difficulty level you are facing in India to get a job is you can say same in Germany also. बट आई हेयर दैट जर्मनी में थोड़ा सा आसान में मिल जाता है जॉब. नहीं, not that, because I have my friends जिनको कितना I know कि how much they struggled to get a particular job like what they are in right now. तो बहुत स्ट्रगल है. हाँ, नॉन टेक्निकल जॉब्स अगर तुमको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू आर लाइक क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा तो यू एनरोल इन अ PhD इन सम यूनिवर्सिटी. सो बाय द टाइम तुमको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल जाता है, मीनवाइल यू डू योर PhD लाइक दैट. फिर रेस्टोरेंट वगैरह में यू कैन वर्क लाइक दैट. तो नॉन टेक्निकल थिंग्स यू कैन गेट, बट टेक्निकली IT में जाना इज नॉट दैट इजी. ओके ओके. या एंड मैम वहाँ पे ना मतलब पार्ट टाइम जॉब करना है. हाँ, थ्रू कॉलेज थ्रू पार्ट टाइम जॉब करना पार्ट टाइम मिल जाता है. पार्ट टाइम थ्रू कॉलेज नहीं बोलूंगी मैं, लाइक डिपेंड्स. सी Like वहाँ पे internship. हाँ, इंटर्नशिप इज अ डिफरेंट थिंग, पार्ट टाइम इज अ डिफरेंट थिंग. Okay. इंटर्नशिप इज अ फुल टाइम जॉब फॉर 2-3 months. ओके. Okay, part time is you are doing your education, meanwhile in a week you are working 20 hours like that. So both are different things. Internship you can get once you do a project. Okay, एक प्रोजेक्ट करने के बाद में you have to approach yourself to the employer जो तुमको प्रोजेक्ट दे रहा है, उनको अप्रोच करो. In your like everyone those who are working in a university, they will work as something, like they will have some other job in research institute or something. Okay, meanwhile they are doing their job in university, so you can approach them. You can be a research assistant, a teaching assistant. So you can tell I did the first job as research assistant. मेरी एक faculty, like my one ma'am was there. So she used to teach us one subject. I don't remember exactly the subject, but I randomly mailed her कि ma'am I am really interested in this subject. I am looking forward, like if I can assist you further. So she said okay. Okay. She was having an opening that time, so she is like okay, like you can. She took interview of me, like little bit what I did in the past and all, exactly everything. Then she gave me 19 hours a week ka job. Okay. I was getting good pay also, so it was the first job. As soon as I guess I went in September, March में I had a job part time. You are the lucky man. हाँ, नहीं, after that like part time you will get easily, not an issue. एंड मैम वहाँ का एजुकेशन सिस्टम लाइक एग्जाम यहाँ पे इंडिया पे थियरी रहता है ज़्यादा. एग्जाम्स तो देखो वहाँ पे द यूनिवर्सिटी वेयर आई वाज इन 120 क्रेडिट्स रहते हैं, यू हैव टू कंप्लीट. उसमें से 30 क्रेडिट्स इज थीसिस, यू हैव टू कंप्लीट अ थीसिस, दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग. इंडिया में दैट PhD लोग जो करते हैं ना थीसिस एंड ऑल, दैट यू हैव टू डू इन मास्टर्स इटसेल्फ इन जर्मनी. इसलिए लोग थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, because if your thesis is not completed, your masters is 0. Okay. Because you are having 120 credits to complete. In that 30 is your thesis. So 90 is completed theory exam. Okay. Full theory you have to do. Plus with that thesis you have to do one project also. Okay, project is a separate thing. So that project plus thesis, that is 38 credit. 8 credits का project रहता है. 38 को छोड़ के then again 82 credits are completely this you can say अपना theory exams. मैम डू यू ऑब्जर्व दैट द वे ऑफ टीचिंग मतलब यहाँ इंडिया नहीं, इंडिया में ज़्यादा बेटर है. टीचिंग Why I would say master's skill specifically India में why it is better, here faculty will put you know like efforts to teach. If you are having any issue you will go and they will also feel कि हाँ नहीं I will solve the issue like that. वहाँ पे एक तो I don't know, it was a bad thing for me, I don't know what, like for us we went during the corona time. Okay, everything was online. All the we never attended a single class physically. Full my masters में attend ही नहीं किया हम लोगों ने. Only exams were physical. Exams completely all exams were physical only. लेकिन classes सारे online थे. तो online में क्या we never used to attend any classes on time. Okay. Because for example I am giving an online lecture. After the lecture gets over, evening में I will upload the video. Okay. So if we are getting the video by the evening, so why I will watch online session? मतलब अटेंडेंस का यहाँ पे नहीं मास्टर्स में अटेंडेंस नहीं रहता. I don't know about bachelors there, but हमारा अटेंडेंस कभी था ही नहीं, never.
Okay. हम लोग लाइक वी यूज टू रोम फॉर 3 months, फिर 4th month में आके एग्जाम्स दो, अगेन 5th month से घूमना शुरू, देन अगेन नेक्स्ट मंथ में आके एग्जाम दो, लाइक दैट Chill. पूरा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जब एग्जाम का टाइम है देन आई नेवर यूज्ड टू टॉक टू एनीवन। Okay. वो 1.5 month लीव मी अलोन वाला सीन रहता मेरा कि आई वांट टू स्टडी एंड आई विल पास लाइक दैट, वैसा वाला। तो दैट टाइम देन वी विल बी फोकसिंग एवरीथिंग, नहीं तो फिर फुल घूमे भी है, पढ़ाई भी की है, एवरीथिंग। लेकिन हाँ, वहाँ पे मैं दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, इंडियंस का द टीचिंग स्टाइल इज बेटर। वहाँ पे नथिंग, वी जस्ट सॉ द वीडियोज, वी स्टडीड बाय आवर ओन ओनली, दैट्स That's इट। why we are creating Google CEO. हाँ, यस, हाँ, तो Such a kind इंडियंस of आर, videos. दैट्स व्हाई आई रिटर्न बैक ऑल्सो, Okay. नहीं तो मैं उधर ही रुक जाती। देर इज सम लाइक अदर थिंग्स लाइक इंडिया, यू कैनॉट, हाँ, फ्यू थिंग्स आई लाइक देर आर ऑब्वियसली बेटर देन, लाइक बेटर इन जर्मनी, दैट इज नो डाउट। लेकिन जहाँ पे लाइक सिविक सेंस हो गया एंड ऑल, ओके फाइन, दे आर गुड इन दैट। Indians are very good as people, I would say. या तो see, since childhood I am here, Yes. just because of cleanliness, air अच्छा है, ये अच्छा है, I don't want to spend my entire life there. Okay, job वहाँ पे भी है, job यहाँ पे भी है। But many of the students were mainly male. हाँ, मेल क्या करते हैं कि अगर जर्मन जाओ और यूएस जाओ वहाँ पे सेटल हो जाओ। settle हो जाते हैं, हाँ, क्यों they will settle because of their living style, lifestyle। बस एक आपकी लाइफस्टाइल, that is for sure, it will change, your lifestyle will definitely change once you move out of India, ठीक है, वो रहता है। तो people will like that, लाइफस्टाइल उनको अच्छी लगती है। मेरे आई पर्सनली आई नेवर गो इन अ लाइफस्टाइल वाला जोन। फॉर मी आई नीड पीपल अराउंड मी, आई नीड गुड पीपल अराउंड मी, द पीपल हुम आई कैन यू नो ट्रस्ट। अगर मुझे बात करनी है किसी से, आई कैन जस्ट स्टेप आउट ऑफ माई होम, आई कैन टॉक टू माई वॉचमैन, Yes, ma'am. आई कैन टॉक टू माई नेबर्स। वहां पे ऐसा नहीं होता है, देयर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स ओनली, कि क्या कर रहा आजा, क्या कर रही आजा, लाइक दैट। देयर यू कैनॉट जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड टॉक टू नेबर रैंडमली, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वहां पे नेबर्स, दे विल इन्वॉल्व इन देयर ओन फैमिली, दे विल नॉट एंटरटेन यू एज अ नेबर। So I need people. So depends upon person to person. I needed that, so I came back to India. admission process Hmm. and See, sorry. which exam we have I to would do. suggest कि अगर आपको समर इनटेक में जाना है, समर इनटेक जनरली स्टार्ट फ्रॉम मार्च एंड अप्रैल, विंटर इनटेक स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर नवंबर। ओके, विच एवर इनटेक यू आर प्लानिंग, उसके एग्जैक्ट 1 year पहले से शुरू करो। Okay. आई वॉन्टेड टू गो इन समर इनटेक, तो मैंने मार्च से स्टार्ट किया। मार्च में यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2 एग्जाम्स, एक रहता है GRE, अनदर वन इज IELTS फॉर जर्मनी, ठीक है। IELTS इज अ इंग्लिश टेस्ट बेसिकली, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। What are the subjects? Only English. English, only English, reading, writing, speaking, listening, that's it. Okay. They test your English ability. Okay, and afterwards GRE में रहता है aptitude, maths, logical reasoning, that's it. Okay, ये रहता है GRE में। तो GRE not necessary for all the university. It's okay, like it's good if you do it. IELTS is compulsory. Okay. IELTS is compulsory. Without that, they will not take you. Okay. IELTS का preparation you can do by your own. GRE also you can do by your own only by watching. Multiple videos are available on YouTube. GRE के लिए I would suggest give 2 months का time. IELTS के लिए 1 month is sufficient. तो ये 3 months में you give both the exams. Okay. Result आने के बाद में as soon as you are done with your exams, start looking for the colleges, universities. Okay. सबका लिस्ट आ जाता है, दे विल गिव द लिस्ट कि अवर एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। तो जितनी भी पहले सारी यूनिवर्सिटीज का लिस्ट बनाओ, उनका डेडलाइंस उसके सामने लिखो। ओके, डेडलाइंस लिखने के बाद में व्हाट आर देयर प्री रिक्विजिट्स, व्हाट दे नीड, वो सबका एक लिस्ट बनाओ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। Okay. उसके बाद में देन यू हैव, वंस देयर विंडो इज ओपन, यू नीड टू अगेन इमीडिएटली हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग। तो बस वो अप्लाई करते रहो, वॉट एवर सर्टिफिकेट्स यू आर हैविंग, दैट थिंग, योर मार्कशीट्स, your LORs are there, letter of recommendations are required, very important, so that everything you need to upload. Then after that this process will be done till September. Okay, I'm talking about summer intake. This process will go up to September. September के बाद में the colleges generally stop for summer intake. Okay. They will not, then they will start processing the applications.
Then in 1 or 2 months you will get your application back. Again. Like whether you are selected or not. Okay. Once you are selected, then they will give you again 2 months ka time to deposit the money. You need to deposit the money. Like they want to know ki if you are coming to Germany, whether you can survive by your own, like that. So you have to show ki I am having money, like that. So that you have to show, that proof you need to again send it back. Okay. Then after you send that 2 months, I guess 2 months bhi nahi, only 1 month ka time they will give it to you. In that you have to open the bank account, deposit the money, then whichever documents they are asking, that also you have to submit. Then after that they will give you one there is one form, I don't remember the name exactly. So that is your entry ticket basically. Okay, they will mail you one acceptance letter. Yes. Okay. Acceptance letter will be there. In that it will be written your name, that you have been accepted by this university, and the joining date for you is this date. You need to report by this. Once you get, then you can start booking your tickets, packing, shopping, everything. Accordingly you book your flight tickets, and then tata bye bye. And students think that after going Germany, they will become successful in life. Do you think नहीं, ऐसा नहीं रहता. Like it completely depends upon you yourself itself. अगर तुम उधर जाके पढ़ोगे नहीं तो कैसे सक्सेसफुल होते हैं? एफर्ट यू हैव टू पुट द सेम ओनली. वहां पे इनफैक्ट आई वुड से कि इंडिया में फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं. यू गो टू प्रोफेसर और टीचर, मैम प्लीज प्लीज प्लीज. वहां पे नहीं चलता. वॉट एवर इट इज, दैट इज द एंड ऑफ द डिसीजन, दैट्स इट. you will not even know ki who is checking your paper. Okay. That also, who is setting the paper, who is checking the paper, no one will know that. So you go give the exam, you come back, you wait for result. Whatever result is coming, that is the end. Okay. So I would say that is little bit tough than India. So this is not the case ki once you go there you will become successful. No, not like that. And the one advice those who wants to go, what would you say? I would say ki pursue your masters. Very important in these, like this time specifically. Okay, because the thing is, you will complete your bachelor's in engineering or any other field. Okay, I would suggest first take experience of 1 or 2 years in IT or any other field, because that experience matters. Okay. That you will write in your resume. Your resume should be uplifting you. Okay, उसको देख, your resume, if I am seeing onto your resume, मेरे को लगना चाहिए कि हाँ, I can give this person entry in my college. Some extra person, there are thousands of applications going into every university, every intake. Okay. Okay, why you are different than others? That you have to start building your resume first. Before thinking to go to Germany, you have to build your resume. Okay, you need good scores in bachelor's first of all. Okay. Okay, your all the subjects should be clear. It's better if you are clearing it in one go. Okay. In one time only if you are clearing, it's very good. If not, don't stretch it for one or like more than 2 semesters. If you are having a back in one of the subject in first year, first semester, as soon as the papers are out, that semester itself you clear that paper. Okay. That is my suggestion, because that will be reflecting in your final mark sheet. That will be going to the Germany, whatever university you are applying to. So they should not see that. Okay, so it's better you clear all the subjects properly, and meanwhile do some certification. Start collecting the certificates. Okay. More and more certificates you are collecting, more like good your resume you are building. ओके, एंड देन जितना अच्छा तुम्हारा रेज्यूमे रहेगा उतना अच्छा तुम्हारा चांस रहेगा कहीं पे भी जाने का. एंड उससे पहले 1-2 साल का कहीं पे भी इंटर्नशिप करो या जॉब करो, वॉट एवर यू वॉन्ट, पहले करो, एक्सपीरियंस लो, देन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जर्मनी और एनी अदर यूनिवर्सिटीज. दैट इज माई सजेशन. And madam, ante I mean, like in India, they will give many of the assignments record. वो उधर भी रहते हैं. वहाँ पे Oh my god, yeah, I still remember. Like every, like it depends. अगर 8 credit का subject है, तो every week 1 assignment will be there. Okay. I still remember one subject was, I guess, database only. Database was the subject name. Every Monday we need to upload the assignment.
Okay. एवरी वीक वी नीड टू. सो हम लोग संडे बैठते थे, बिकॉज इफ योर असाइनमेंट इज नॉट अपलोडेड एवरी वीक देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एग्जाम. Okay. वहां पे ज्यादा स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू इंडिया में. दे विल आस्क यू टू सबमिट असाइनमेंट मिड वन में ओनली. मिड वन के लिए एक असाइनमेंट, मिड टू के लिए एक असाइनमेंट. Yes. देयर फॉर कंप्लीट कोर्स एवरी वीक यू नीड असाइनमेंट सबमिशन. Due to that, do you think any? Do नहीं, you अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग बिकॉज दैट टाइम देन एवरी वीक यू आर स्टडिंग समथिंग. Hmm. यू आर स्टडिंग, तो तुम्हारे को लाइक ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन इट विल नॉट बी अ बर्डन फॉर यू. Okay. So according to that it is good. 4 credit subject में 2 weeks में एक assignment रहता था. It depends, 2 weeks 3 weeks like that. But 8 credit subject में every week assignment will be there. Presentations. Presentation नहीं, there is one seminar 4 credits का. Okay. But it is completely your course में एक ही seminar रहेगा. Complete like in 2 years 3 years whatever you are doing. तो उसमें एक seminar you have to do 4 credits का. That is also group seminar. 2-3 people का रहता है. Okay. तो ऐसे Yeah. इंडिया में रहता है. हाँ, सेम सेमिनार में वही प्रेजेंटेशन, सेम थिंग. okay. या मतलब अरे यहाँ पर आता है. एंड मैम जर्मन में मतलब यहाँ पे अगर रोड पे चले तो सिग्नल जंप कर सकते हैं. या हाँ कुछ भी है. हाँ हाँ. तो होता अच्छा, है ना. रूल्स यू आर सेइंग, नहीं वहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है. लाइक इफ यू आर नॉर्मल कार ड्राइवर, ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल देयर आर लेन्स, हाँ. इफ यू वांट टू गो लेफ्ट यू कैन नॉट स्टैंड इन द मिडिल लेन. ओके. इंडिया में कैसा है कि अगर मुझे राइट जाना है तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में खड़ी रहूंगी, वहां से टर्न मार के राइट जाऊंगी. यस मैम. वहां पे अगर इफ यू वांट टू टेक अ राइट टर्न यू हैव टू बी इन द राइट लेन. स्ट्रेट जाना है तो मिडिल लेन, लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट लेन. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट देन ऑल्सो ट्रैफिक रूल मतलब वो चलान लगता है. वन वेरी फनी थिंग एंड वेरी स्ट्रेंज थिंग व्हाट आई नोटिस एंड एवरी इंडियन विल नोटिस, वहां पे हॉर्न बजाने पे फाइन है. हॉर्न. यू कैनॉट हॉन्क रैंडमली इन जर्मनी. ओके. इफ यू आर हॉन्किंग इमीडिएटली जो गवर्नमेंट रहती है दे विल गिव यू वन नोट. इफ इट इज नॉट वैलिड, इफ योर रीजन इज नॉट वैलिड दे विल फाइन यू 50 euros फॉर वन हॉन्किंग. नियरली एक 5000 रुपीज या नॉर्मली. लेकिन एक हॉर्न बजाने का तुमको 50 euros चार्ज करते हैं वो लोग. अगर कंटिन्यूअस 1 मिनट बजाया तो तो फिर तो गए. नो वन विल डू दैट. लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई वाज देयर 2.5 years. मैंने सिर्फ एक बार सुना है, दैट टू आवर बस ड्राइवर समवन रैंडमली केम इन बिटवीन. Only that time and we all were so scared because you are not in the habit of listening to the horns and all. When I used to come to India na, that time I got so irritated initially कि why people are honking so much because you are not in that zone. So the government rules are very strict, especially with the traffic rules. Okay. वहाँ पे license के लिए people fail. Fail. Literally they will fail for license. They getting a license in Germany is an achievement. Achievement. People literally put some status or something for that कि I got a license today in Germany because वहाँ पे even if for example they tell you to speed up, okay, and they will tell you suddenly to brake. If you fail to do that they will fail you in the exam Okay. directly. वहाँ पे ये नहीं चलता बेटा. यहाँ पे तो चल रहा है मैम. नहीं, वहाँ पे it's very strict जर्मनी में to get a driving license क्योंकि वहाँ पे there is a autobahn like highway. वहाँ पे they will take you to the highway also to test. सिटी में भी चेक करते हैं, हाईवे भी टेस्ट करते हैं. रिटन एग्जाम डिफरेंट, 3 लेवल्स रहती है. Okay. या एवरी 3 लेवल में यू विल हैव डिफरेंट डेट्स. इफ यू फेल फर्स्ट लेवल अगेन अपीयर, इफ यू फेल सेकंड लेवल अगेन अपीयर फॉर फर्स्ट एंड सेकंड. How much time they will give? फुल टाइम, बहुत टाइम लगता. लाइक माय फ्रेंड ही स्टार्टेड अप्लाइंग व्हेन लाइक इन 2020 ही गॉट लाइसेंस इन सेकंड ईयर. Okay. नहीं मिलता. when you're every time you have to pay and that amount is very huge, 1000-2000 euros like that. Okay. very huge amount. तो it's difficult. हैदराबाद में देखे तो हैदराबाद नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये हाँ, सेम all over है India. पूरा पूरा. या मतलब कौन सा सिग्नल पे देखे तो भी एक ट्रैफिक पुलिस दिखता है. हाँ, लेकिन फिर भी आई वुड से कि हैदराबाद में इट्स वेरी गुड. Yeah. जो सिग्नल अगर इफ पुलिस Like that, इफ ट्रैफिक compared- पुलिस इज देयर तो इट इज मैनेज्ड वेल. ठीक है, कहीं कहीं पे पुलिस आर नॉट देयर तो कुछ भी कहीं भी चल रहा है, वैसा वाला चल रहा है. लेकिन यहाँ पे स्टिल आई हैव सीन लाइक इट इज मैनेज्ड, अच्छे से मैनेज किया है. पुलिस दिखाई देता है क्या मैम? मतलब
यहाँ पे पुलिस कहाँ पे ये वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं रहते, वहाँ पे एवरी सिग्नल पे देर इज अ कैमरा अटैच्ड ऑलरेडी. Whatever you do, it will be captured. You will get the challan directly. It is automated completely. वहाँ पे जो ये रहते हैं ना अपने लाइक द पुलिस हुआ ऑन द राउंड्स, वो राउंड्स वाले पुलिस दिखते हैं. ओके. या एंड नाइट में स्पेशली दे विल रूम, फुल नाइट में घूमते हैं वहाँ पे. मतलब मैम आपने कभी कि देखे हो क्या मैम चेन स्नैचिंग? मैंने नहीं देखा. एंड इन माई टाउन इट वॉज नेवर देयर. अगर ऐसा हो गए तो पुलिस के पास जाओ और क्या करोगे. अच्छा. सेम थिंग. हाँ, लेकिन नहीं मिलता. अच्छा. चेन स्नैचर्स आर नेवर फाउंड. ये तो कहीं पे भी ऑल ओवर ये ग्लोब का डिसीजन है. अगर तुम्हें यू शुड बी वेरी लकी टू फाइंड योर थिंग्स बैक फ्रॉम द स्नैचर्स. ये नहीं होता. वेरी डिफिकल्ट बट वेरी रेयर एक्चुअली. वहाँ पे रेयर, मैं वही बोल रही, इट्स वेरी रेयर. ओके. मैंने तो अपने लाइक 2.5 years 3 years में आई डिड नॉट सी दिस थिंग्स. नेवर. या थैंक यू मैम. वेलकम. थैंक यू. डंके मैम. Bitte.